nationalism in India. Now, the first question comes in our mind, why the name of the first chapter is Rise of Nationalism in Europe, and why the name of the second chapter is Nationalism in India. Why there is a difference created by the well-known writer of, there are two or three or more than three writers of the history. They nomenclatured nationalism in India, while the first chapter's name is The Rise of Nationalism in India, in Europe. The reason behind it is very simple. That incident occurred in the 18th century, and in comparison to the citizens of India, they were far better, and there was not a colonial government in the France. They thrive out. The king of the Europe, and he agreed, yes, I am ready to leave my seat, leave my throne, and instead of me, you will run the government. It means they won the half battle, but we did not won the half of the battle. We were just under the colonial rule. We all were oppressed. Many sections of the people were oppressed. So they were discovering in what way we should thrive out the colonial government from India, so that we, our native, may become the ruler of India. This is the reason the name of this chapter is Nationalism in India. अब एक बात दिमाग में आती है सबसे पहले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चंस comes in our mind. It means, I just told you, nationalism means we have the idea of oneness, one notion, the idea how to live ourselves as a oppressed society from the clutches of Britishers. When all sections of the people have possessed the one idea, while talking with each other, while interacting with each other, उनके दिमाग में यही प्रश्न उठता है, अरे भाई इनसे कैसे पिंड छुड़ाएं. जैसे पीजेंट आया, वो कहे कि हमारे यहाँ पे लगातार 2 या 3 ईयर तक कोई भी फसल ढंग की हार्वेस्टिंग नहीं हुई. वी कुड नॉट गेट द गुड हार्वेस्टिंग. वी आर फेसिंग द फेमिनाइन. वी आर फेसिंग द ड्रूट. सिमिलरली जो कंजर्वेटिव पीपल है, उन लोगों ने कहा भाई हम भी बहुत हताश हैं. सती प्रथा थी, बाल विवाह था, वो सब कानून बना करके रोक दिया इन्होंने, क्योंकि कंजर्वेटिव पीपल चाहते थे जो हमारे थॉट हैं वही रहने चाहिए. गुरुकुल हमारे बंद कर दिए थे, तो गुरुकुल बंद होने से जो संस्कृत की पढ़ाई है वो सब खत्म हो गई. वो कहे कि नहीं, तुम अब जो है या तो साइंस पढ़ोगे या इंग्लिश पढ़ोगे, ये फालतू की चीज नहीं पढ़ोगे. मैकॉले ने इस तरह का रूल बना दिया. तो इट मीन्स मेनी सेक्शन ऑफ द पीपल वर ऑप्रेस्ड, एंड दे हैव द वन आइडिया ओनली हाउ वी कैन ड्राइव आउट these Britishers from India. This one idea is called the nationalism. When all sections of the, even the Muslims were not happy, they had to live the miserable life. Merchants were not happy, they had to lead the miserable life.
except some government employees, even the Sipahi, they were not happy with that British government. As you might have gone through the eighth class, it is clearly written that Mangal Pandey denied to do the drill. उन्होंने ड्रिल करना के लिए इनकार कर दिया था, क्योंकि जो कार्टिलेज का कवर था उसको हटाने के लिए ऐसी अफवाह उड़ी थी कि या तो इसमें पिग का या फिर गाय का चमड़ी काम में आती है. दे डिनाइड टू ओपन द कार्टिलेज बॉक्स एंड डिनाइड टू डू द ड्रिल. ऐसा कुछ होने के बाद जब जितने भी सेक्शंस ऑफ द पीपल थे, उन लोगों ने ये तय किया कि हम किस तरह से आइडिया कैसा बनाएं हम, जिससे कि ये यहाँ से छोड़ने को मजबूर हो जाए. इन द ईयर 1915 गांधी जी भी वहाँ से आ गए साउथ अफ्रीका से. गांधी जी के आने के बाद में गियर अप हुआ, तेजी से मामला चला. उसका रीजन क्या था? एक तो उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया लेके आए थे, और एक दूसरी बात, उनको ये समझाया गया था उनके गुरु के द्वारा, जो बाल गंगाधर तिलक थे, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाओ, आप जाकर के यहाँ जो अपार्ट हेड वाली प्रॉब्लम, काले गोरे वाली प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो, वहाँ इससे बड़ी प्रॉब्लम है. उन कॉलोनियल गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश करो, उनको ड्राइव आउट करो. तो यहाँ आने के बाद 1950 में उन्होंने आके देखा प्रॉब्लम किस तरह की है. तो प्रॉब्लम किस तरह की नजर आई, ये देखिए आप. नेशनलिज्म इन इंडिया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, custom duties raised and income tax introduced, forced recruitment of soldiers in villages, crop failed and food shortage. 12 to 13 million people died due to the famine and epidemic. What does it mean? Why such circumstances? Why such political and economic and the social changes were seen? Why they raised their custom duties? Why the income tax was introduced? Because just after the First World War, as you will study in the next chapter, that England become the debtor. He took lot of debt, बहुत सारा ऋण लिया था from the America. When that country becomes the debtor, as over India is British India, there was a colonial rule. They want money, and without money they cannot rule over the country, rule over the India in a well way, so that they raise the custom duties. And the second is forced recruitment of soldiers in village. They were having the idea in their mind that as and when we are in need of the soldiers, from where we will find the soldiers. So they did the forced recruitment. That because in those days also, just when the First World War was going on, they did the forced recruitment of soldiers from the villages. Why the forced recruitment is used? Because the parents did not want to send their children, send their young one to make the soldier for the First World War. Why we go? We are not in a mood to fight the war of Britain. So that it is called the forced recruitment. Then crop failed and food shortage. For the from 1916 to 17, 20 to 21, there was a regular famine occurred. They could not get the good harvest. So naturally, we have to face the food shortage. And this is also one of the points that 12 to 13 million people died due to the famine and epidemic. When
there was the famine for 1, 2, or 3 regular successive years. Then we have to face the food shortage, as well as we have to um, face the shortage of the other agriculture product also. And the last but not least, the epidemic. We have to face the epidemic because in those days, the influenza epidemic occurred and near about 12 to 13 million people. It means 12 into 10 lakhs, 120 lakhs people, 130 lakh people died due to epidemic. Now, I just told you that in the year 1915, when Gandhiji returned back to India, what he did? In regular 16, that is 1916, 17, and 18, he did the 3 work and become famous in the whole of the India. And what was the reason behind his success? That with the positive mind and by struggling with the Britishers, he used this Satyagraha idea. And what this idea says, it emphasizes the power of truth and need of search for truth. क्या मतलब है भाई? कि इन्होंने ये बात कही कि इस सत्याग्रह से, यानी एक जगह बैठ करके भूखा रह करके अपनी बात मनवाने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ आप भूखे रह जाइए, गो ऑन फास्टिंग. So this is called the need of search of truth by non-violent way. If you are using this non-violent strategy, it means you are not in the vengeance. बदले की भावना नहीं है आप में. आप जो है किस ढंग से इनसे बैटल कर रहे हैं? non-violent ढंग से. So many leaders of the international leader, they praise this idea. What a good idea he possesses. And due to this good idea, he could able to get success in 3 occasions. One is चंपारण. चंपारण में क्या था कि इंडिगो ग्रो कर रहे थे किसान लोग, और बीच में एजेंट होने के कारण दे कुड नॉट गेट द अमाउंट. When at last in the settlement they could get near about 25% of the total money, claimed money, तो उनके अंदर एक जोश भर गया. उनके अंदर जोश भरने वाले कौन थे? गांधी जी ने. क्योंकि वहां पे सत्याग्रह ही, जिस समय 10,000 की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, कोर्ट के अंदर घबरा गया था मजिस्ट्रेट ने कहा, now you should apply for the bail. But no, I will not apply for the bail. In what way he was able to suppress the power of the magistrate? Then all peasants which were living in the Champaran, they praised this step. He even rebuked the concerned advocates. Why would you make demand for the good fees from these illiterate and very poor peasants? You should accept their case with a very little amount. Then he stayed there for the 6 months in Champaran with his wife. So that due to that episode and due to that incident, the news was spread all over the India. और ऐसा माना गया कि ये देखिए किस तरह का आदमी है जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़ रहा है. दूसरी बात जो आपको समझाने की है वो ये है कि उन दिनों के अंदर एक बहुत काला कानून आया था, और ये जो काला कानून था रोलैक्ट एक्ट के नाम से, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी से पास कर दिया. और इसके पीछे मोटिव क्या था? इसके पीछे मोटिव ये था, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को 2 साल के लिए डिटेन कर सकते हैं
देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिटेन एंड अरेस्ट। डिटेन का मतलब तो विदाउट शोइंग द रीजन, इफ दैट फेलो इज केप्ट बिहाइंड द बार, ये तो डिटेन कहलाता है। और शो करे रीजन कि भाई ये रीजन है, इस रीजन डेकोइटी के कारण या रेप के कारण या आपने किसी का मर्डर कर दिया, इसके कारण आपको अरेस्ट किया जाता है, वो अरेस्ट कहलाता है और ये डिटेन कहलाया, यानी विदाउट शोइंग एनी रीजन। तो इसका पूरे इंडिया के अंदर मास एजिटेशन चला, प्रोसेसन चला, जुलूस निकले और सड़कों पे लोग आ गए। और अमृतसर पंजाब के एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा इसका विरोध देखा गया। सबसे ज़्यादा विरोध देखने के बाद में वहाँ पे लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज होकर उनके सिर पे इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा और वो अंतिम दिनों के अंदर जीने जैसे हो गए। गांधी जी को कह दिया गया कि ये बड़ा खतरनाक लीडर है। ही वॉज बार टू एंटर इन टू द दिल्ली एरिया, दिल्ली एरिया के अंदर नहीं जा सकते थे। तो ये 1919 की बात है। दैट रॉलेट एक्ट केम इन द ईयर 1919। 1919 के अंदर सबसे ज़्यादा एजिटेशन कहाँ पे हुआ? पंजाब में। पंजाब में भी अमृतसर सबसे बड़ा शहर था, वहीं पे हुआ। लाठीचार्ज वगैरह हुई थी और रेलवे और पोस्ट ऑफिस और जितने भी ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे वहाँ पे बंद से हो गए थे। लोग बाग सड़कों पे हो गए, उतर गए थे और दिल्ली के अंदर भी बहुत बड़ा जुलूस वगैरह निकला था। यानी पूरी इंडिया के अंदर इसका अपोजिशन हुआ था। इसके बाद 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना हुई, इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट ओकर। क्या हुआ घटना? बैसाखी के दिनों के अंदर जनरल डायर को सौंपा गया काम कि आप यहाँ कंट्रोल कीजिए। उन्होंने मार्शल लॉ लगवा दिया क्योंकि कंट्रोल स्थिति नहीं हो रही थी। मार्शल लॉ लगाने के बाद बेचारे गांव के भोले भाले लोग इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग के अंदर। उनको चारों तरफ से बाहर से बंद करके गोलियों से छन्नी कर दिया गया। मैनी पीपल डाइड। बताया जाता है एक कुएं के अंदर एक के ऊपर एक जो है लोग गिर गए थे और इसके बाद घुटने के कारण डेथ हुई थी। घुटन के कारण उनकी डेथ हुई थी। ड्यू टू सफोकेशन दे डाइड इन द वेल। और इस इंसिडेंट की पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा हुई और कंडेमनेशन भी हुआ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको भर्त्सना की गई। इसके बाद गांधी जी ने सोचा कि हम क्या एक ऐसा मोमेंट चलाएं जिसके कारण अंग्रेजों को सोचना पड़े कि भाई अब हमारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आइडिया इनके दिमाग में आया, नॉन कोऑपरेशन करें। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या? हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। कोऑपरेट नहीं करेंगे का मतलब क्या? यानी आप जो भी सरकारी आदेश वगैरह देंगे उसमें कोऑपरेट नहीं किया जाएगा। देखिए, दो टर्म है, एक तो नॉन कोऑपरेशन और एक दूसरा आपका सिविल डिसओबीडियंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसओबीडियंस? तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब अवज्ञा, आज्ञा नहीं मानना। यानी आप कानून में जैसे जैसे बिजली का बिल आ गया, बोले हम जमा नहीं कराएंगे, दिस इज कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस। जैसे इन्होंने जो है नमक का आंदोलन किया था, दांडी पे जाकर के नमक का मैन्युफैक्चर किया था। मैन्युफैक्चर का रीजन क्या था कि इरविन ने एक ऑर्डर निकाला था और ऐसा कहा था कि वाइसरॉय ने कि जितने भी नमक है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इन्होंने कहा नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू पे द टैक्स, क्योंकि ये गरीब से लगा करके पैसे वाले तक एसेंशियल कॉमोडिटीज है, इसमें टैक्स देने वाले नहीं हैं। एक चिट्ठी भी लिखी थी। कुल मिला, चलो ये आगे डिस्कस करेंगे। अब आप वापस आते हैं नॉन कोऑपरेशन से, यानी गवर्नमेंट से नॉन कोऑपरेट करना। नॉन कोऑपरेट का मतलब स्कूल चल रही, बोले स्कूल नहीं जाएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, बोले नहीं जाएंगे प्रोविंशियल काउंसिल में। कोर्ट चल रहा है, बोले कोर्ट में एडवोकेट वगैरह नहीं जाएंगे। टीचर्स ने सबने इस्तीफा दे दिया, बोले हम तो स्कूल नहीं जाएंगे। सच टाइप ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तय करने के लिए 2 बार गवर्नमेंट इसके कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन में तय नहीं कर पाया थे क्योंकि उनको ये डर था, गांधी जी को सबसे बड़ा डर ये सता था, कोई भी काम अगर वायलेंस से हो गया तो हम सफलता नहीं पाएंगे। तो ड्यू टू दिस प्रिकॉशन, instead of adopt this non-cooperation in the month of the September October, they extended for some time. आखिर नागपुर में यह तय हुआ कि हम दिसंबर 1920 को हम एडॉप्ट करते हैं, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाएंगे। और इसमें सबसे पहला मैंने अभी अभी बताया कि इतने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्कूल में टीचर नहीं जाएंगे, स्कूल में स्टूडेंट नहीं जाएंगे, कॉलेजेस में ये नहीं जाएंगे, और हम जितने भी जो मैनचेस्टर से बन के कपड़ा आता है उसकी होली जलाएंगे, वो पहनना छोड़ देंगे। आपको ताजुब होगा कितने एक इस 2-3 महीने के अंदर, एक साल भर के अंदर इंपोर्ट होना कम हो गया था, जस्ट आधे से भी कम हो गया था, क्योंकि द पीपल स्टार्टेड टू get into fire all these clothes। और दूसरी लिक्वर वगैरह है, उसके ऊपर भी इन्होंने जो है बैन कर दिया था कि बाहर की शराब वगैरह हम काम में नहीं लेंगे। 2 जगह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था। तो ये लिखा हुआ है, बाइकआउट ऑफ द सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, स्कूल, फॉरेन गुड्स, इट हैज बीन डिस्कस्ड विद यू। Following the Congress session at Nagpur in December 1920, the movement was adopted. What happened next? Yes, एक बात मैं कहना भूल गया कि गांधी जी ने ऐसा चाहा कि अगर मुस्लिम हमारा साथ नहीं देगा, बिकॉज ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल वी शुड गेट द कोऑपरेशन फ्रॉम द ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल। शौकत अली और ये थे, इन्होंने एक सेशन किया था 1920 के अंदर, बॉम्बे के अंदर ये तय किया था कि वी विल अपोज दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन दिस इश्यू कि देयर Ottoman, one of the Khalifa leader and king was insulted during the First World War. We will show the opposition. So we will show the protest so that all Muslim want to start the procession showing the opposition on this very point, that why our Khalifa and the king was insulted. He was the religious leader of the Muslims. Muhammad Ali Shaukat Ali led the movement. Then Gandhiji talked with him, if you support me, we will support you. It means they agreed, Muhammad Ali Shaukat Ali agreed to support the non-cooperation movement so that we can say the Muslim also come forward in the support of non-cooperation movement. What happened next? It has been decided the provincial election were boycotted, foreign goods were boycotted, the liquor shop were picketed. The moment of the slowdown due to khadi cloth was more expensive, lack of alternative arrangement, student teachers returned to the school, lawyers backward. Now, third point is very important. Why does slow down in the town? Because for the long time the school cannot be closed. We cannot make the alternative arrangement. हम वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकते थे, पहली बात। दूसरी बात कि खादी बहुत महंगी पड़ती थी, मोटी खद्दर, और कहाँ से वीवर्स कहाँ से बना पाएंगे? क्या इतना कपड़ा जो मैनचेस्टर से आता था, वी कुड नॉट मैन्युफैक्चर इन सच ए लिटिल टाइम। तो यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एबॉर्टिव रह गया था, फेल्योर रह गया था कुछ दिनों के बाद। कहाँ पे? टाउन में। अब अपन देखते हैं कि वहां क्या हुआ गांवों के अंदर। रेबेलियन इन द कंट्री साइड। रेबेलियन इन द कंट्री साइड का मतलब वहां पे विद्रोही हो गए थे। कांग्रेस के अधिवेशन में ऐसा नहीं तय हुआ था कि वहां पे ऐसी स्थिति होगी। क्यों नहीं हुआ था तय? वहां पे तो ये हुआ था, भाई हमने नॉन कोऑपरेट करनी है, हमारा ये ध्येय है। हम
हिंसा करेंगे ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ढंग से अवध के अंदर अपने ढंग से, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर मॉडर्न हिल है, गॉर्डन हिल, वहां पे अपने ढंग से इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया गया। और तीसरा, प्लांटेशन पे जगह पे भी इसको मूवमेंट को अपने ढंग से चलाया गया था, अपने ढंग से, जैसा वहां पे डिस्कस हुआ था सेशन के अंदर, कांग्रेस सेशन के अंदर, उस ढंग से नहीं चलाया गया था। रीजन क्या था? दे वर ऑल वर इलिटरेट। और दूसरा, अपना खुद का उल्लू साधने के लिए, अपना खुद की सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए, अवध जैसे अवध पीजेंट मूवमेंट की बात बताते हैं। बाबा रामचंद्र, ही वॉज इंडेंट्योर्ड लेबर, ही केम फ्रॉम द कैरिबियन आइलैंड, फिजी से आए थे, और इन्होंने क्या शुरू किया, वहां पे मूवमेंट शुरू किया। उसके पहले एक बार किसान सभा सेटअप हुई थी, जवाहरलाल नेहरू को पता लगा भाई यहाँ किसानों की प्रॉब्लम है, चलो अपन दूर कर देते हैं। काफी कुछ समझाया, देखिए अपन को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपके ढंग से नहीं करना है, जैसा कांग्रेस में तय हुआ उसी ढंग से करना है। लेकिन वो बात मानने वाले थे क्या? पाटीदार और जो वहां पे पैसे वाले जागीरदार थे, उनके खिलाफ नाई धोबी आगे आकर के उनके कपड़े वगैरह धोना ही बंद कर दिया। दे स्टॉप टू सर्व देम, they stopped to give their services to them, rich persons. Then after they looted, talukdar and merchants were attacked in the bazaar and looted. In that way, that Awadh moment occurred. And what happened? Guerrilla movement spread in 1920 by Alluri Sitaram Raju. That fellow, he belongs to Andhra Pradesh, remote area, जहां पे कौन रहते हैं? आदिवासी लोग रहते हैं। ट्राइबल पीपल क्यों नाराज हुए थे? आपने 9th के अंदर पढ़ा होगा। बिकॉज उनको पहाड़ों पे और रिजर्व फॉरेस्ट करके उन्हें आने नहीं दिया गया था। When they were not allowed to enter into the forest, how they could survive? So they had to spread the guerrilla movement. Guerrilla movement मतलब चुपके से अटैक करना, पुलिस स्टेशन पर अटैक करना, इनके ऑफिसरों को मार देना। तो इनका एक अल्लूरी सीतारमन राजू, he happens to be the pupil of the महात्मा गांधी, उन्होंने कहा अरे मैं तुमको समझाता हूँ किस तरह से मूवमेंट करना चाहिए। ये गुरिल्ला वार, ये तो हमारे दुश्मन नहीं है, इनको तो हमको भगाना ही है। इनको जब भी भगाया जा सकता है हम शराब छोड़ेंगे, इनको जब भी भगाया जा सकता है जब गांधी जी के शिष्य बन के हम टोपी वगैरह, दे स्टार्टेड टू वियर द गांधी कैन कैप एंड simultaneously there was the guerrilla movement, guerrilla attack on the officers of the these Britishers as well as पुलिस थाना। इस तरह का मूवमेंट वहां पे चला था आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर अब आते हैं अपन स्वराज इन द प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के अंदर एक कानून बना हुआ था अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। प्लांटेशन वर्कर वर नॉट permitted to leave the tea garden without permission, but they left. All were in that impression that Gandhiji will help you. Gandhiji, the Gandhi rule will come in our India, and at last they will drive. They will be the Britishers will be driven out by the Gandhiji, and Gandhiji will provide us the land to the landless people. So instead to become the worker in the plantation, we should go at our home. वहाँ लूकी सूकी खा लेंगे। They left, but due to this act, they could not leave that very garden, that very plantation, but they left. So they were caught and they were brutally beaten by the police. Instead of reaching at the destination, अपने डेस्टिनेशन के पहले ही इनको बहुत पीटा गया। इसके बाद देखिए, वर्कर बिलीव्ड दैट एज पर गांधी जी एस्पिरेंस द लैंडलेस पीपल वुड बी प्रोवाइडेड लैंड इन द विलेजेस, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ऐसी कोई बात ना तो कांग्रेस के सेशन में की गई,
कि भाई इस तरह से लैंड, क्योंकि गांधी जी कौन होते हैं लैंड देने वाले, कॉलोनियल रूल था। और दूसरी, दे कुड नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन एंड दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली beaten. What is the next point? Now towards the civil disobedience. Why the non-cooperation movement was not smoothly ran? The reason was this: the violent incident occurred in the UP. Near about 7 to 8 people, or more than 7 to 8 policemen, were gutted to fire. The mob fired on the police station and they died. And after the killing of these soldiers, Gandhi ji have to declare that कि हम इसको यहीं पे विराम देते हैं. That non-cooperation movement was suspended for the time being and completely suspended. उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस कैसे बना, कैसे शुरू हुआ, वैसे क्या भूमिका बनी, इसके बारे में अपन ध्यान देते हैं. CR दास, मोतीलाल नेहरू formed a new party, स्वराज पार्टी. There was dissent, आपस में एक खिंचाव हो गया था. किन के बीच में? CR दास, मोतीलाल जो पुराने लीडर थे और नए लीडर के बीच में. ऐसा खिंचाव होने के बाद में इन्होंने स्वराज पार्टी अलग बना दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू और ये सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे हम कांग्रेस में रह करके ही हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिलाएंगे. उन्होंने ये सोचा. उसके बाद साइमन कमीशन आया 1928 के अंदर. इन द ईयर 1928 द साइमन कमीशन कैम. इस 1928 के अंदर साइमन कमीशन को आते ही गो बैक साइमन काला झट्टा दिखाया गया. और साइमन कमीशन का मकसद क्या था कि हम यहाँ पे आपको स्टेट्यूटरी, एक अलग डोमिनियन, आपको इंडिया अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनवा करके देंगे. बिल्कुल बात नहीं मानी गई, बिल्कुल फेल्योर था साइमन कमीशन. फिर दिसंबर 1929 के अंदर एक घटना हुई थी. वह इंसिडेंट एक छोटी सी क्या हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा मन में सोचा कि हम 1930 26 जनवरी 1930 को हम आज़ाद होकर के इंडिया को आज़ादी दिलवा देंगे. इन्होंने फ्लर किया, वही 26 जनवरी 1930 को आज़ाद भी हो गए. मैं तो ऐसा ही मान रहा हूँ. लेकिन इस इंसिडेंट पे ज़्यादा ध्यान लोगों का इसलिए नहीं गया क्योंकि ना तो आज़ादी हुई थी, एक सपना था. इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने जो है झंडा लहराया था उस दिन, उस बात को आई गई हो गई थी. इसके बाद में और ऐसी अफवाह उड़ा दी कि पूर्ण स्वराज हम फॉर्मलाइज हो जाएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो जाएगी, जबकि हुआ नहीं था ऐसा. ये इंसिडेंट है जो गोरखपुर के अंदर हुआ था, जहाँ पे ये मारे गए थे कितने. हाउ द सिविल डिसोबीडियंस वाज स्टार्टेड बाय द गांधी जी. गांधी जी wrote the letter to Irvin Viceroy that I have 11 demand, and from this out of this 11 demand, the one demand was important, that as you impose the tax on the salt, it is used by the very poor person, from king to poor person, to why this is, tax is imposed. Now I am going to, with my follower, I am going to break this law. This is called the civil disobedience. I'm not going to become the, we are not going to become the obedient subject, obedient citizen of the British India. What he did, from the Sabarmati he started the procession along with the 78 followers, and he started journey for the 24 days, 10 days to Dandi, near about 240 kilometers far away from the Sabarmati. Wherever, as a pedestrian, when they were going to the Dandi, they were welcomed by a lot of the people. The woman, child, and all section of the people welcomed him. He gave lecture to the woman that you should make yourself busy in your household work. You should not involve in the politics.
where he was convinced, Gandhiji was convinced by the other political leader. After reaching at the Dandi with ceremony, there was a ceremonial manufacturing of the salt. This is called the civil disobedience. Along with this famous, one of the very famous civil disobedience work, so many peasants denied to give the revenue, लगान देना बंद कर दिया. बहुत सारों ने गांवों के अंदर चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया. और इसके आगे हम इंडिया के कितने हिस्सों के अंदर और क्या क्या सिविल डिसोबीडियंस के काम हुए थे और बीच में होल्ड क्यों हो गया था, इसके बारे में अपन देखेंगे. बीच में होल्ड होने का रीजन क्या था कि इन द ईयर 1930 गांधीजी वाज अरेस्टेड along with the पुख्तन लीडर, जो इनके डिसिपल थे, आज पाकिस्तान के अंदर वो है. उन गफ्फार खान को पकड़ा गया था. फिर दूसरे कितने पॉलिटिकल लीडर को 1930 के अंदर पकड़ा गया था. और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने फॉरगो की थी, नहीं गए थे. सेकंड राउंड टेबल में भी विद एम्प्टी हैंड गांधी जी हैव टू रिटर्न बैक. एक साल के बीच के अंदर गैप होने के बाद में फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और हुआ. वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर किसने क्या रोल किया था, क्योंकि एक साल का गैप हो गया था, तो उसके मोमेंटम लेने के अंदर काफी टाइम लगा और पहले जैसा जोश भी नहीं था लोगों के अंदर. पाटीदार ऑफ द गुजरात एंड जाट ऑफ यूपी ने अपना खुद का सेल्फिशनेस ढूंढी. वो सेल्फिशनेस क्या ढूंढी कि चलिए अपन ऐसा करते हैं, अपना रेवेन्यू कुछ कम होता है, रिड्यूस होता है, उसके लिए लड़ाई करते हैं. जब नहीं हुआ तो वो पीछे हट गए. किन किन जो सेक्शन ऑफ द पीपल ने इस सेकेंड टाइम के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉरी नॉन कोऑपरेशन के बजाय ये जो है लिखा जाना चाहिए क्या, सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर सेकेंड बार के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर ऑफ द नागपुर रेलवे एंड माइन वर्कर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. अदर देन द वर्कर ऑफ द नागपुर रेलवे एंड माइन वर्कर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जहां इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, वहां पे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वर्कर दूर हट जाएंगे. तो सिर्फ वर्कर ऑफ नागपुर ने ही पार्टिसिपेशन किया था. और गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर द होम. यह आपको बता दिया गया कि जिस समय खेड़ा जा रहे थे तो किस तरह से औरतों को उन्होंने लेक्चर दिया था, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है. तो दीज आर द सीन्स when he represented the many people who welcomed him during the Salt March, and how the people gathered and welcomed these 78 followers. They were going to the limits of civil disobedience. Now it is important thing to discuss about this, the limits of the civil disobedience. What happened? In the year September 1932, after the Gandhiji intervention, certain electorate Dalit were not accepted. Likewise, separate electorate for Muslims were not accepted. Why such thing is written? The Britishers wanted, along with this Baba Sahib, he was also wanted. He was representing the depressed association from the Maharashtra. He advocated the separate electorate. Separate electorate मतलब क्या हुआ? खड़ा भी दलित होगा, वोट देने वाला भी दलित ही होंगे.
दलितों के अलावा कोई वोट नहीं दे सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम. व्हेन दिस system was discussed before the Gandhiji, he was deadly against this point. No, the separate electorate system should not be adopted. If it will be adopted, I will go unto death. टिल डेथ, यानी मैं फास्टिंग टिल डेथ, यानी फास्टिंग करूंगा टिल डेथ. अगर ऐसा हो गया तो इनको बाबा साहब को झुकना पड़ा इनके सामने, गांधी जी के सामने, और सेपरेट इलेक्टोरेट वाली सिस्टम को विड्रॉ करना पड़ा. नहीं भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट भी नहीं होगा और ये होगा. और उन दिनों से ही डिप्रेस्ड क्लास को अलग से क्या दी गई थी, रिजर्वेशन दे दिया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव में और प्रोविंशियल काउंसिल में, जो अभी तक आगे लोकसभा और राज्यसभा में भी इनका अलग से रिजर्वेशन हुआ है, जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे. ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस डिसअपियर्ड व्हेन अच्छा, ये तो इससे नेक्स्ट वाला है. इससे पहले एक चीज डिस्कशन और कर रहे हैं अपन. यहां पे मुस्लिम्स ने भी कहा वी वांट द सेपरेट इलेक्टोरेट system, because what the Muslim League leader and the Muslim prominent leaders thought that we are insecure. If we will be amalgamated with the Hindus, then our survival will be finished. हमारी सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगी और डोमिनेंट लोगों के सामने रहना पड़ेगा. उस 1930 के अंदर ही तय हो गया था, जिस समय मोहम्मद इकबाल वगैरह प्रेसिडेंट थे. उन्होंने कह दिया भाई हम तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहेंगे. जो एग्री हो गए थे कौन लोग, ब्रिटिशर्स. लेकिन दूसरे कांग्रेस एग्री नहीं हुए थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट अगर इनको खड़े होने वाले को भी एक्सेप्ट किया जाता है तो डिवीजन होकर के एक कॉम्युनलिज्म ज्यादा हो जाएगा और क्लास वार हो जाएगा. टू अवॉइड द क्लास वार, the Congress and other people did not agree on the separate electorate system. In those days, that is in the 1932, what happened? When there was a joint committee was organized, the Congress and different parties, they come on the same route, same roof, and they want to have the conference, but that conference was dismissed due to the introduction of the M.R. Jayakar, the Hindu Mahasabha opposed the efforts. तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी, इसीलिए कांग्रेस से भी नाराज हो गए थे मुस्लिम लोग. अब आगे अपन देखते हैं कि आखिर में हमको नेशनल मूवमेंट का लास्ट फेज ये आता है. किसने क्या रोल किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1870 ही रोड वंदे मातरम, हिम्न ऑफ मदरलैंड. उसके बाद में एक आनंद नाम के एक वो भी इन्होंने निकाली थी. इसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर, he was the brother of the Rabindranath Tagore, he painted two type of Bharat Mata. One is ascetic figure, she is calm, composed, divine, spiritual, and subsequent year the image of Bharat Mata acquired many dimensions. एक तो एक ये चित्र बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक बात और की थी कि जो स्वदेशी मूवमेंट चला था उनमें सुबह पहले प्रभात फेरी होती थी, उनमें क्या गाने रखे जाए, कौन से भक्ति गीत रखे जाए और क्या क्या जो है टेल्स वगैरह रखे जाए, उसमें मेहनत करके इकट्ठी करके इनको प्रभात फेरी वालों को देते थे, जाइए. और यह स्वदेशी मूवमेंट इस तरह का चला था. दैट ऑल्सो प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट, represent the traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. इन स्वदेशी लोगों ने कहा कि आपको पता है, फिर
टेल्स वर संग बाय बार्ड्स, बार्ड्स का मतलब पुराने गीत होते हैं, उनकी बताई गई। हु टोल्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स। अरे हमारा स्वर्णिम भारत था एंसेंट टाइम में, देखो कितने बड़े बड़े ऐसे अशोका द ग्रेट, हर्षवर्धन, इस तरह के हुए थे। बाहर से लोग हमारे पास में यहाँ पे पिलग्रिम आते थे, और यहाँ पे अशोक वगैरह ने जो है बौद्ध का प्रचार वगैरह किया था, सोने की चिड़िया थी। इस तरह की बातें लोगों को समझाई गई थी। अरे इन अंग्रेजों के आने के बाद में भी यहाँ दुर्दशा हुई, उसके पहले बहुत अच्छा इंडिया था। ऐसी बातें लोगों के दिमाग में डालने का काम किया था सुबह की प्रभात फेरी ने। इसके अलावा गांव-गांव में जाकर के और झुंड से सॉन्ग गा करके अलग अलग तरह के, जो सब साधारण से इलिटरेट फेलो को भी समझ में आ जाए, नर्सरी रिम्स जिसको बोलते हैं, नर्सरी के स्टूडेंट वगैरह को, वो किए गए थे। रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। अब देखिए दो फ्लैग बनाए गए थे। एक फ्लैग जिसको स्वदेशी कहा जाता है, जिसके अंदर 8 प्रोविंसेस, 3 6 + 2, 8 कमल के फूल दिख रहे हैं आपको। ये 8 लोटस रिप्रेजेंट करते हैं 8 प्रोविंशियल्स को, और चंद्रमा और सूरज करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये बनाया था स्वदेशी मूवमेंट में। दिस टाइप ऑफ द फ्लैग में बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। कई बार मेंशन अबाउट, say something about the Swadeshi flag, say something about the Swaraj flag. It was made by the Gandhi ji, red, green, white, spinning wheel, बिल्कुल सामने आपको डिपिक्ट हो रहा है। फिर ये दूसरी माता जो अभिनंदनाथ टैगोर ने बनाई थी, उन्होंने एक त्रिशूल हाथ में लेकर के, पहले तो त्रिशूल नहीं था, वो तो काम और इस तरह की थी पहले वाले में। अब आप यू कैन कंपेयर दीज टू भारत माता। इस बार ये वाली भारत माता बनाई गई। ये दोनों फ्लैग के बारे में बता दिया। राइटर wrote about the glorious development in ancient time when the art, architecture, science, mathematics, regional culture, law and philosophy, craft and trade had flourished. पूरी तरह से बात बताई गई कि जीरो का आविष्कार भी हमने किया था। जो विलेजर्स ये ऐसे जानते थे कि साइंस वगैरह सब इनको आती है, इनको बताया गया नहीं, साइंस हमारे यहाँ पे एंसेंट टाइम के अंदर पहले बहुत अच्छी थी, एस्ट्रोलॉजी अच्छी थी, वैदिक जो है मैथमेटिक्स वगैरह की देन भी हमारी है। इस तरह की बात इनको बताई गई। इस तरह से अपन ने 1947 15 अगस्त को आज़ादी प्राप्त, वी गॉट इंडिपेंडेंस, और इस तरह का नेशनल मूवमेंट चला था। इसीलिए इसी तरह से अपन ने सब चीज़ प्राप्त की थी। प्रभात फेरी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। थैंक यू।